Hello guys, welcome back to your own channel, that is Smart English Learning with Sushma Ruhal, and this is class 12th poem 2nd and part 1. In this video we will come to know word to word explanation of this poem, and at the end of this video I will give you all literary figures line wise, that which literary figure is used in which line with its reason also. So if you would like to watch its second part, in which I will already given you the question answers, sold extracts and board questions also, so you can just watch the video, subscribe the channel, go to the playlist, and you can watch the video in the literature part, and for writing section also you can select in the playlist, right? So it's first second part is also available there on the channel. What is given here in this chapter, you know, the lesson name is the poem name is there, an elementary school classroom in slum, means to say the poet is describing here an elementary school classroom that is in the slum area. So the poet is Stephen Spender and gives a description of a school classroom that is already in the slum, and these children are sitting in the classroom. And what is given there means the poet is giving you the situation, whatever is the plight of the children. Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds. What is mean this? It means that the faces of the children are dull and their appearance shows that they are unwanted. मीन्स फार फार, ये बहुत दूर है अपने ब्राइट फ्यूचर से, और इनके जो गस्टी वेव्स मीन जो झोंकेदार लहरें कभी आती हैं वो उनकी लाइफ में कभी भी आने वाली नहीं है. These children faces, इन बच्चों के फेसेस को देख के ऐसे पता चलता है. So what do you mean by this? The faces of the children are dull and their appearance shows that they are unwanted. Okay, and these children have gloomy faces. These children have gloomy faces. Like rootless weeds, the hair torn around her pallor. Like rootless weeds means they are just like unwanted. These kind of children are just like unwanted, and rootless means they have no any strength, they have no any power. The hair torn means there is one tall girl who has her down head, who did her down head means उसने जो अपना head है वो नीचे झुका रखा है, and her hair torn around their pallor means her hair are spread all around her shoulder. Her torn hair means here unhealthy, uncombed, dirty hair, very very dirty hair are spread all over her pallor skin. Pallor means here yellowish skin, a yellowish skin, as well as on the shoulders also there. And the tall girl, and she had down her head already, and it shows that she was very weak, she was ill, she was sick. The paper seeming boy with red eyes. Paper seeming boy means one thin skinny boy is there and his eyes are just like rat. You know, rat has very small eyes. So like this, the same the boy has also very small, very little eyes there. And it shows that they are unhealthy, they are very weak, they are malnourished. The stunned unlucky hair of a twisted bone. So what do you mean by this one? That unlucky hair are there means of stunned unlucky hair means these children are called as unlucky and they have twisted bones means उनकी जो हड्डियां वो मुड़ी हुई है, and these are looks like that they got it from their fathers means this is genetic problem. They thought that this is genetic problem, whatever their twisted bones they got, those they got just like because of genetic problem. And one boy is reciting a lesson from his desk. And what lesson is he reciting? He is reciting a lesson of his father's Gunrald disease. मीन्स यहाँ पे एक बच्चा है जो बेंच के ऊपर खड़ा होके वो क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक बच्चा बेंच के ऊपर खड़ा होके कर क्या रहा है यहाँ पे, वो अपने फादर की जो गठियाबा की बीमारी है उसके बारे में जो है वो यहाँ पर बता रहा है, और अपने बेंच पे खड़ा होकर एक लेसन सुना रहा है. एट बैक ऑफ द डिम लाइट, और बैक ऑफ द डिम क्लास, जो क्लास है उसके बिल्कुल पीछे, आपने देखा होगा जैसे क्लासरूम में बैक साइड पे क्या होता है, थोड़ा सा अंधेरा होता है. क्यों होता है? क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है, और लाइट ना होने की वजह से यहाँ पर क्या कि बैक बेंच पे क्या है यहाँ पे
एट द बैक ऑफ डिम क्लास, मीन्स ये जो क्लास बिल्कुल डिम है यहाँ पे, और इसमें अंधेरा होने की वजह से थोड़ा हल्का अंधेरा है, जिसकी वजह से क्या है, वन अननोटिस्ड स्वीट यंग बॉय, मीन्स ऑन द लास्ट बेंच, ऑन द बैक बेंच, एट द बैक बेंच, one sweet and young boy, you can see like this, who is in the white dress up there. So this sweet and young boy who thought that he is unnoticed, he thought that he is unnoticed, no one is paying attention on him. So what is he doing, what this sweet and young boy is doing, he is just having dreams in his eyes, कि इस बच्चे की आंखों में कुछ सपने हैं, कुछ ड्रीम्स हैं ऑफ स्क्वैल गेम। और वो यहाँ पर क्या देख रहा है, यहाँ पर एक स्क्वैल के गेम को देख रहा है, जो कि ट्री में जिसने अपना छोटा सा होल बना रखा है उस स्क्वैल ने, और वो स्क्वैल यहाँ पर कभी अंदर जा रही है, कभी बाहर आ रही है, कभी अंदर जा रही है, कभी बाहर जा रही है। तो उसके ऐसे गेम को देख के बड़ा अट्रैक्ट होता है, एंड ही इज हैविंग होप हियर, means he is very hopeful towards his life. So this question has come many times in the examination, that what this unnoted or sweet boy was thinking there. So he was just thinking about his bright future, he was just thinking about his future, he is very hopeful towards his future there. Next is on sour cream walls, means walls are of white color, faded color, okay, or just like pathetic condition is there of this classroom, these walls, and even after on having this kind of, see, faded color is there, faded color of the paint of white paint is here, that is also faded, means color जो paint है वो उतरा हुआ है यहाँ से। और यही नहीं, इन ही walls के ऊपर क्या है, यहाँ पर 4 पोस्टर हैं। 4 पोस्टर कौन से? फर्स्ट पोस्टर इज ऑफ शेक्सपियर, एक पोस्टर जो शेक्सपियर के हेड का है, जो कि आपको दिख भी रहा है यहाँ पे, यू कैन लुक एट दिस वन। सेकंड इज क्लाउडलेस एट डॉन, ये आपको नहीं गिवन है यहाँ पे, बट ये वाला पोस्टर भी यहाँ पर होता है। वो कौन सा है? क्लाउडलेस, मीन्स क्लाउड नहीं है वहां पे, ऐसे बिना क्लाउड के, मतलब मॉर्निंग का सीन। डॉन क्या होता है यहाँ पर? अर्ली मॉर्निंग का सीन बिफोर राइजिंग सन। So that scene also described in one poster, that is also shown there. Civilized dome writing all city, और पोस्टर में क्या क्या यहाँ पर civilized cities का सीन है, यहाँ पर एक चर्च है और all cities बिल्डिंग्स यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये पोस्टर एक है। नेक्स्ट पोस्टर, थर्ड पोस्टर में क्या, यहाँ पर एक ट्रॉयल वैली है, यहाँ पर वैली का नेम है ट्रॉयल, और यहाँ पर बेल शेप के फ्लावर्स है, यहाँ पर बेल्ड शेप्ड, मतलब जो मतलब से घंटी नुमा जो बेल शेप के होते हैं, बेल शेप्ड फ्लावर होते हैं, वो इस वैली में। एंड द फोर्थ इज देयर ओपन हैंडेड मैप, you can see that what is given here, one open handed map, means one world map is given there, and awarding the world its world, means वो ये बता रहा है कि ये जो वर्ल्ड है वो मतलब इनके वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है। ये जो वर्ल्ड है वर्ल्ड मैपिंग, ये this is very very different from their own world, because their own world was in poverty, okay, and very dark and dim there, okay, but there in this poster, in this world map, the life was very wealthy and very luxury there now. And yet these, for these children, these windows, not this map, means the life of these children, is just only limited up to the windows and not this map. It means जो इन बच्चों की जो लाइफ है वो ये मैप नहीं है, इस मैप में इनकी कोई लाइफ नहीं, because map is showing the wealthy and rich person's life. Even on the other hand, their life is very dim, dull, and they have to live in very atrocious condition, very poor condition there, okay, and only those windows were their future, where all their futures painted with the fog, means these slum area children future is painted with the fog indicating here unclear. So fog means here unclear, it means their future is unclear, that is dim and dull, just like fog, means as in the fog we are not able to see anything clearly, means everything will be unclear to us in the fog. Similarly their future also unclear, they can't see their future clearly, what will be there. Narrow street sealed it with a lead sky, मीन्स नैरो स्ट्रीट, मीन्स बिल्कुल नैरो, बिल्कुल भीड़ी भीड़ी सी गलियां, बिल्कुल नैरो स्ट्रीट है यहाँ पे, और इन स्ट्रीट के ऊपर जो स्काई है, देखो जैसे ये स्ट्रीट है इनकी, इन स्ट्रीट के ऊपर जो स्काई है ना, यही इनका स्काई है, यही इनका वर्ल्ड है, यही इनकी दुनिया है, इससे बाहर की दुनिया को ये नहीं जानते होते क्या है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, और ये बहुत दूर है किन से? अच्छी जो नीट एंड क्लीन रिवर्स बहती हैं उनको नहीं पता इनको कि कौन सी होती है, कैब्स जो होते हैं, जो अंतरिक्ष होते हैं, जो
सागर महासागर होते हैं उनके बारे में इनको नहीं पता है। स्टार्स ऑफ वर्ड्स मीन्स प्रोमिसेस, भी बंदे इनके प्रॉमिस करते हैं बट वो चले जाते हैं, उन प्रोमिसेस को फुलफिल करने नहीं आते, तो इसमें भी कहते हैं कि उनको नहीं पता कि प्रॉमिस होता क्या है। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड एंड दिस क्वेश्चन इज coming every time in the exam, every time, and in 3 course this question will be at least in 2 course or in all also. So Shakespeare is wicked, the map is bad example. Why the Shakespeare is bad, map is bad example? The map is bad example because they are tempting, they are attracting towards the stealing habit, they are not getting good things, they are not getting any kind of sport from them, and they are see with sheep, sun and love, all these things like sheep, sun and love, all these things are tempting them, attracting them towards the stealing habit because they don't have any source, they don't have any sport or any of the money back there that they can just do, they can solve the problem there, because they have no source, they have no money, and they want to live the same life, they want to live the wealthy and rich life, then they will surely अट्रैक्ट टुवर्ड्स द स्टीलिंग हैबिट, चोरी की तरफ वो बच्चे जा सकते हैं अगर उनको आप इतनी अच्छी लग्जरी लाइफ दिखाएंगे। अगर कोई गरीब बच्चा, पुअर बच्चा है, ठीक है, अगर पुअर को आप दिखाएंगे कि भाई देखो कितनी लग्जरी लाइफ, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, इतना इतने बंगलों में, इतनी बड़े बड़े गार्डन्स देखना, रिवर देखना, तो वो अट्रैक्ट तो होंगे श्योर, लेकिन देखो हम कितनी गंदी गार्बेज में, कितनी गंदी सिचुएशन में रहते हैं, तो हम भी इसी, हम क्यों नहीं इसी सिचुएशन में रह सकते हैं? तो इन सिचुएशंस को पाने के लिए वो फिर स्टीलिंग की हैबिट की तरफ जाते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट विद शीप्स, सन एंड लव, ऑल दीज थिंग्स आर टेम्पटिंग, attracting, tempting means attracting them towards a stealing habit. Four leaves that slyly means very slowly they are turning, they are moving towards their very congested houses. Crammed holes means very congested houses, as we have seen in this animation also, that people are moving towards their very congested houses there. From fog to endless night, and this fog will always be in their life, there will be no end of this night. On their slag heap means garbage heap, slag means garbage heap means ढेर, कि यहाँ पे जो garbage का जो heap है, जो ढेर है, उनकी life वहीं पे जाकर के रुक जाती है। They have to sit with the slag heap or with the garbage. This slag word meaning was asked one time in the examination. Slag means garbage. These children wear skin, means these children are sitting on the heap of the garbage there. Wear skin pipped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on the stone. Means to say they pipped like means इनकी जो बॉडी, इनकी जो बोन्स है, ऐसे लगता है कि हड्डियों के ऊपर स्किन डाल दी, होता है ना कि जैसे थिनी स्किनी पर्सन होता है, हम कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि जो हड्डियां हैं उनके अंदर जो है हड्डियों के ऊपर स्किन को पहना दिया हो, तो ऐसी इनकी भी बॉडीज लग रही है। एंड पिप्ड थ्रू द बोन्स, ऐसा लग रहा है कि उनकी जो हड्डियां हैं वो स्किन में से झांक रही है। पिप्ड मतलब झांकी हुई, ऐसा लगता है झांक रही है, वो यहाँ पर झांकती हैं। एंड स्पेक्टिकल, उनके जो स्पेक्टिकल्स होते हैं, जो चश्मे उन्होंने डाले होते हैं, वो कैसे हैं? मेंडेड ग्लास, उनके जो ग्लास है, कैसे ग्लास है उनके? ऐसे ग्लास उनके अंदर लगे हुए हैं जैसे कि क्रैक्स पड़े हुए होते हैं। मेंडेड ग्लास में जैसे कि क्रैक्स उनके अंदर पड़े होते हैं, ऐसे ऐसे उनके गोगल्स हैं, यहाँ पर स्पेक्टिकल्स हैं। और जैसे कि स्टोन के ऊपर बोतल गिर जाने से उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, स्टोन के ऊपर बोतल के गिरने से जो क्रैक्स आ जाते हैं, ऐसे ही लाइक दिया ना, ऐसे ही, तो सिमिलरली ऐसे ही क्या है उनका क्या है, यहाँ पर उनके जो ग्लास है, उनके स्पेक्टिकल्स में उनके अंदर दरारें आई हुई हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, कि हर टाइम उनको अपना जो है वो फोगी स्लम के अंदर ही रहना पड़ता है, फोगी स्लम के अंदर अपना टाइम पास करना पड़ता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स, कहते हैं इन मैप्स को हटा दो, फाड़ दो, ले जाओ यहाँ से, विद स्लम एज बिग एज रूम, क्योंकि इनकी वजह से क्या हो रहा है, इनकी वजह से उनको जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इनकी वजह से उनको दुखी होना पड़ रहा है, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दे हैव टू लीव। नेक्स्ट इज अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, कहते हैं कि बेसिक यहाँ पर गवर्नर भी आके चले गए, इंस्पेक्टर भी आके चले गए, विजिटर्स भी यहाँ पर आते हैं, और जस्ट सिंपैथी हासिल करने के लिए ऐसे बच्चों के साथ जैसे फोटोग्राफ्स लेते हैं, वो लेते और चले जाते हैं, बट कोई भी अपने प्रोमिसेस फुलफिल नहीं करता। तो यहाँ पर जो स्टेफन स्पेंडर है वो यही चाहता है कि जो गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर जो भी विजिट करते हैं यहाँ पे, तो वो आकर के कुछ तो इनकी हेल्प करो,
हम यहाँ पर आते हैं, देख के चले जाते भी, कुछ तो इनकी हेल्प करो, कुछ तो गवर्नर को करना चाहिए। ये तो यानी कि सिंपैथी हासिल करने के लिए इलेक्शन के टाइम पे पॉलिटिशियंस यहाँ पर आ जाते हैं और ये दिखाते भी हमने दान कर दिया, ये कर दिया, बट बाद में कुछ भी नहीं होता। तो वो चाहते कि रियल में इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए। This map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs। मीन्स कहते हैं कि ये विंडो ही, इन विंडो तक ही इनका जो फ्यूचर वो लिमिटेड हो चुका है। इनका जो मैप है, जो वर्ल्ड है, वो सारा विंडो तक ही लिमिटेड है। और ये विंडो ऐसे बंद हो चुके हैं जैसे कि कब्रिस्तान में जाकर के, जो कब्र में जाकर के कब्रिस्तान में उनकी जो कब्र है वो बंद हो जाती है। ऐसे ही कैटाकॉम्स होते हैं, कब्रिस्तान का जो रास्ता होता है कब्रिस्तान में, तो ऐसे ही होती है जैसे कब्रिस्तान में। और लाइक वर्ड यहाँ पर बहुत बार आ चुका है, तो सिमिली बहुत बार आ रहा है। बाकी लिटरेरी फिगर्स आपको लास्ट में करवाती हूँ अभी। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। कहते कि ब्रेक कहते तोड़ दो, सारी जो फाउंडेशंस उनको तोड़ दो, उन सारी फाउंडेशंस को यहाँ से हटा दो। और वो ये चाहता है कि वो उनको खुलकर टाउन की तरफ भागने दो, टाउन की तरफ जाने दो, टाउन की लाइफ को पहचानने दो। एंड शो द चिल्ड्रन द ग्रीन फील्ड, और बच्चों को ग्रीन ग्रीन फील्ड, जो हरे भरे खेत उनको देखने दो। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनका जो संसार है उनको अपने संसार में, अपनी दुनिया में खो जाने दो। और जो गोल्ड कलर की जो सैंड है उनके ऊपर उनको नंगे पैर चलने दो। एंड लेट देयर टोंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स विद व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स, और जो बुक्स हैं, जो उनके हाथों में बुक्स है, उनको वहां पे जाकर नेचर में, इन द लैप ऑफ नेचर उनको पढ़ने दो। नेक्ड मींस नंगे पैर उनको वहां पर दौड़ने दो। एंड ग्रीन लीव्स जो है उनके अंदर, उनको यहाँ पर ग्रीन लीव्स को देखने दो। ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, मीन्स टू से कि जो वर्ल्ड है वो उनका है जिनका सन है। कहने का मीन्स कि ये जो स्लम एरिया के अंदर है, ये जो है जो सनी, मीन्स द सनी वार्म सैंड of the beaches and the bright blue sky will instill the hunger of the knowledge of their mind। मीन्स जितने के अंदर नॉलेज उनको हासिल करने दो। and that then children will be economically strong। So what do you mean by the last line? That it will make them economically strong also if they will get some chance, if they will get some support, some chance from anybody else, like from the government, from the governors, or from the inspector. So after that what will happen? They will also be able to live their life as usual, as usually the children are living there, and then economically they will strong there. Now the last page is there for what you are waiting there, and this is given literary figures in this poem. So simile is there wherever like word is there, like rootless weeds. Metaphor is there, paper seeming boy। पेपर को हमने किससे कंपेयर किया? बॉय से कंपेयर किया, तो मेटाफर मींस एक नेचर की थिंग को हमने किससे कंपेयर किया? ह्यूमन बीइंग से, तो वो क्या हो गया? मेटाफर। मेटाफर सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ओल्ड सिटीज, राइडिंग करना, ऐसे दौड़ना होता है, दौड़ना तो ह्यूमन बीइंग की हैबिट होती है। तो यहाँ पर जो हैबिट है उसको सिविलाइज मतलब नेचर की चीज से दोबारा कंपेयर किया, तो फिर से मेटाफर है। देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद द फोग, फोग नेचर की चीज है, और पेंट जो फ्यूचर है वो किसका होता है? ह्यूमन बीइंग का होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर मेटाफर है। अगेन अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, एक नैरो स्ट्रीट जो है वो क्या है? नेचुरल थिंग है, उसको नेचुरल थिंग क्या? स्काई को किससे? ह्यूमन बीइंग की रहने वाली जो स्ट्रीट है उनसे कंपेयर किया है, तो यहाँ फिर से मेटाफर है। लीव्स एंड स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल, क्रैम्ड होल जो हम उनके जो कंजेस्टेड होल हैं उनके अंदर धीरे धीरे ऐसे जाते हैं जैसे फोग होती है, तो इसमें भी क्या है कि मेटाफर की सेंस यहाँ पर आती है। मेटाफर अगेन कौन सा है कि ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग हीप जो गार्बेज हीप है, गार्बेज हीप जो है यहाँ पर क्या है? फिर से एक नेचर की चीज को उनकी लाइफ के साथ कंपेयर किया गया। किसकी साइड की? जो चिल्ड्रन है, स्लम एरिया के चिल्ड्रन, उनकी लाइफ को गार्बेज हीप से यहाँ पर कंपेयर किया गया। सिमिली फिर से लाइक, अगर जहां पर लाइक आ जाते हैं वहां तो सिमिली ही होता है। नेक्स्ट अगेन इस लाइन में देखो फिर से लाइक आया तो फिर से सिमिली आता है यहाँ पर। नेक्स्ट मेटाफोर कैसे कि हिस्ट्री ऑफ दैट्स हुज लैंग्वेज इज द सन, मींस यहाँ पर सन नेचर की चीज को यहाँ पर हमने अपनी इकोनॉमिकली वेल्दी कंडीशन से यहाँ पर कनेक्ट किया है जो कि ह्यूमन बीइंग से कनेक्टेड है। सो ऑल दीज आर द लिटरेरी फिगर्स ऑफ द सेम, बिकॉज इन द एग्जामिनेशन दे विल आस्क यू व्हाट आर द लिटरेरी फिगर्स, एंड इन दिस लाइन दे विल गिव द लाइन एंड आस्क यू व्हाट इज द लिटरेरी फिगर, व्हाट इज द poetic device, what is the figure of speech? All have the same meaning, figure of speech, poetic device, literary figure. But whenever they will ask you any of the word, means they are asking you only these words, and in the examination you have to write only this word. Like they will give you this line, like rootless weeds, so you have to write only simile, only this word, and you will get one full mark there, right?
So I tried my best to teach you the poem there. So thank you so much for watching the video. If you want to watch, it's the second part in which I have given you sold extract, NCRT and board question. Then you must watch the video that is already uploaded on the channel. Thank you so much.